Stop the recording. Chalo. Okay, now let me see if other people are just joining. But you are not supposed to enter any of the class without video. Okay, so please on your video, and moreover, I am going to mute you all. You are not supposed to unmute them in between. ठीक है? So these are all new जो हमारे rules है मतलब school के जो है, we have already signed the certificate. So because of that, I have to do that. ठीक है जी? अच्छा, आज किसी का बर्थडे तो नहीं है ना? मैं विश करना तो नहीं भूल गई किसी को? करणबीर का बर्थडे तो नहीं है? मैं देख लूं पहले ना, किसी का बर्थडे तो नहीं है, विश कर दूंगा अपने बच्चों को. किसी का Rusal, sorry फिर आप मैं I can't take you in the class, but it's difficult for me. Today is 12th of December. 9J, 9G, दिग्विजय का बर्थडे है ना? Am I right, Mr. Digvijay? You can speak, Mr. Digvijay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good evening. Happy birthday to you, Digvijay. Sab wish karo. You should show the party sign, everyone. Thank you, ma'am. Okay. So we are wishing all happy birthday to you. चलो नाउ एवरीबॉडी इज म्यूट. एक बार मैं फिर से देख लूं किसी और का तो नहीं है बर्थडे. नहीं, एक्सेप्ट दिग्विजय और किसी का बर्थडे नहीं है. So he is the birthday boy today. He is attending the class. You're not doing the party? When is your birthday party? Ma'am, no. Now? And you're attending the class? Wow, that's good. Ma'am, no. No party. Why? I don't know. You're not enjoying your birthday? Ma'am, no. Simple. Money. Okay, no problem. चलो हमने सेलिब्रेट कर दिया. हम जैसे कर सकते थे हमने वैसे कर दिया. ठीक है? You should be happy. Happy birthday from Okay, our ma'am. side. ठीक है? Happy birthday from CIS, the Suwa, Sarita ma'am, and whole grade 9. Thank you, ma'am. You're welcome. चलो. ठीक है? Okay. So let's see. I have to do the Surina Kumari. Who is this, beta? कोई चैट में बता दो. सुरीना कुमारी. ये मेरी क्लास में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है. सुरेना कुमारी. I don't know. ऐसे में कोई रिमूव कर दूँ, बेटर है मैं ऐसे ही रहने दूंगी फिर वेटिंग लिस्ट में. Okay, I'm going to share the screen and we were doing mind maps. Rusal, Stuti, video on, Hridayjot, video on. Otherwise, you will be just getting off from this. Hanji, Hridayjot, video on, otherwise I'm just going to put you in the waiting list. खुद quit कर जाना फिर. Better, I don't want to insult you then. Chalo, you're not listening me, then I'm going to just put you in the waiting room. Yes. So I'm going to share the screen. Yes, Tuti, you want to speak something? Yes. Mama, video is already on. It's on, beta. Pehle nahi thi on. Now it's on. Fine. So let me check out screen share. I'm going to share the screen. So we were doing mind maps. Third chapter ka karna hai abhi. We have to do for third chapter. Okay. So just a second. Yes. सुरेना कुमारी, who is this? मेरे को नहीं पता बेटे. मैं ऐसे किसी का कोई और नाम होगा तो I can't enter you. Here are my mind maps. So अगर आपका कोई अच्छा
Kashish 9F2, I can add her. केशव सलारिया है, केशव सलारिया का है, केशव केशवा सलारिया. Keshava. Is this Keshava? बेटे अनम्यूट करो अपने आप को. Your ID name is different. I can't enter you like this. Who is this? अच्छा. And your section, Keshava साथ में section भी करना होता बेटा. Enter your section even. Okay. So we were doing mind maps. So let me continue with this again. Third chapter. Shall we continue with the third chapter? Are you all ready? Are you all ready, beta? Just a second. आप लोग अनम्यूट हो रहे, अभी अनम्यूट नहीं होना आपने. वंशिका जी, नो. हाँ जी, चलो. So let's start with this. So poverty as a challenge. This is the third chapter we are left with. Okay, chalo, let's start. So are you all ready with this? I guess somebody is still. म्यूट पहले मैं कर ही दूं आप लोगों को. Yes, let me just share the screen again. सेटिंग्स मेरी करने वाली मैं कर दूंगी दोबारा से चेंज. So poverty as a challenge. Now listen. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने किया था हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर स्टिल पुअर. So 300 million people, 30 crore people are poor in our country. ठीक है. So इंट्रोडक्शन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, इट इज हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. कौन कौन गरीब है. पॉवर्टी एज अ चैलेंज में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी. ठीक है. सो व्हेन समबडी इज सफरिंग विद हंगर, जब किसी का पेट नहीं भर रहा, मतलब भूखा रह रहा है कोई आदमी, ठीक है, एंड उसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, तो वी जस्ट कॉल दैट पर्सन इज सफरिंग विद पॉवर्टी. लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, जब लोगों के पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है. सैनिटेशन मतलब वॉशरूम जाने के लिए नहीं है, खुले में शौच. ठीक है. अगर वो कर रहे हैं लोग तो देन सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है. ठीक है. सो वी कॉल दैट एज योर, अगेन पीपल आर इन द पॉवर्टी. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल. हमें एक छोटी सी जॉब भी जो होती है एक डिसेंट लेवल, मतलब
रेगुलर जॉब जो है, रेगुलर काम मिलता है, तो देन वी आर डूइंग विच काइंड ऑफ मतलब एक डिसेंट लेवल से भी कम वाली जो लेवल की जॉब है, वी आर डूइंग दैट. Yes, Tajeshwar, how are you? Ma'am, I'm fine. Okay, welcome to the class. Okay. Now you are not able to unmute yourself. मैंने पहले कर दिया mute. ठीक है? हाँ जी. Now listen. Poor people are ill-treated at farms, factories, hospitals, etc. So most of the places में इन लोगों को even बुरा treat किया जाता है. इनको अच्छे से treat नहीं किया जाता. So this is what they're talking about. ठीक है? So एक regular जो job होती है, एक minimum level वाली जो हर रोज काम करते हैं लोग, वो काम करके minimum जितना भी पैसा मिलना चाहिए वो मिल जाए. अगर वो भी नहीं होता लोगों के पास, they are suffering with poverty. So we can call all these people as poor. Fine. So people are ill treated in factories. आपने देखा हम लोग भी हैं स्पेशली. तो यहाँ पे रिक्शे वाला है कोई, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आपको जब पहले भी पढ़ाया था तो मैंने कहा था पिटाई कर देते लोग, तूने आगे से रिक्शा कैसे निकाल दिया, गाड़ी के साथ टच कैसे हो गया. तो दे जस्ट बीट देम अ लॉट, इल ट्रीट करते हैं. ठीक है. फार्म्स फैक्ट्रीज में हम लोग भी है, फार्म्स में भाई ये काम कर रहे हैं तो वी जस्ट मेक फन ऑफ देम. ठीक है. ये सारी क्या है, क्योंकि वो गरीब है तो वो सारी चीजें सह रहे हैं. सो पॉवर्टी इज ऑल्सो चैलेंज फॉर देम. फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी दिहाड़ियां मार लेते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं. सो वी कॉल देम. इवन हॉस्पिटल्स वाला बताती हूँ. सम ऑफ द लेडीज वर प्रेग्नेंट एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बिकॉज दे वर पुअर. उनके पास पैसा नहीं है उन्हें ट्रीटमेंट करवाने के लिए, डिलीवरी के लिए. सो उनको उस चीज में भी सफर होना पड़ता है. कई बार ये आता है कि लेडी वाज लाइक वेंट टू हॉस्पिटल एंड शी वाज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी. ठीक है. और उसको हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसी न्यूज आती हैं. ठीक है. सो क्यों? बिकॉज ऑफ गरीबी, पुअर है. दिस इज द रीजन. सो ये सारे अगर आप इंसिडेंट देखते हो तो आप ये मान के चलोगे जो भी बंदा इन इंसिडेंट को सफर कर रहा है दैट पर्सन इज पुअर. ठीक है. इसके बाद है टू कॉन्सेप्ट्स. आप पॉवर्टी जो है, सोशल साइंटिस्ट जो है, सोशल साइंस के साथ जो इन्वॉल्व है लोग जो इसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं, सो दे हैव गिवन यू टू कॉन्सेप्ट्स. वन, दे हैव गिवन सोशल एक्सक्लूजन, अनदर इज वल्नरेबिलिटी. सोशल एक्सक्लूजन में क्या, कुछ जो है हमारी सोसाइटी में लोग, हम उनको ये मान के चलते हैं कि पुअर शुड लिव विद द पुअर. सिंपल चीज है. मैं कहती हूँ चलो जलंधर में एक जिम है. ठीक है. यहाँ पे बहुत से जिम है जलंधर में. तो स्तुति योर वीडियो इज ऑफ अगेन बेटा, प्लीज ऑन योर वीडियो. हाँ जी. सो यहाँ पे भी आपके एरिया में भी काफी जिम्स वगैरह होंगे. सो आई फील एवरीबडी इज ब्लेस्ड इन अ वेरी गुड लोकेलिटी यू आर लिविंग इन. ठीक है. तो सबके घर के आसपास ऐसे होगा कुछ ना कुछ, है ना. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली. ओके, just a second. There is okay. चलो आगे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. सो एक्सक्लूड किया जाता है इन लोगों को. They have excluded these people. ठीक है. सो इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. एक्सक्लूड मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं पुअर पीपल शुड लिव विद द पुअर पीपल ओनली. आपने देखा होगा कितनी हिंदी मूवीज इसी कंसेप्ट के ऊपर बनी है. एक होटल होता है. ठीक है. होटल वाले की बेटी होती है, उसके साथ वो एक आसपास वाली बस्ती होती है. बस्ती वाले लड़के हीरो से उसको प्यार हो जाता है. फिर वो हीरो जो है जो हीरोइन का फादर होता है वो प्रॉपर वो बुलडोजर लेके जाता है और उसको तुड़वाने की कोशिश करता है. फिर वो प्यार मोहब्बत वाले गाने आते हैं. So we have seen many movies like that. So same concept है. तो गरीब पर्सन फिर अल्टीमेटली क्या, तो ब्रेकअप हो जाता है हीरो हीरोइन का, उनके पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, फिर ये सारी चीजें होती हैं. सो अल्टीमेटली द थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इज सोशल एक्सक्लूजन.
कि गरीब आदमी को गरीब लड़की से ही प्यार करना है, गरीब लड़की के साथ ही गाने गाने हैं जो मूवी में दिखाते हैं हमारी। वो हीरो हीरोइन गाने गा रहे होते हैं तो उनको वही काम करना है, ठीक है। सो पुअर शुड बी लिविंग विद द पुअर लोकेलिटी, पुअर पीपल ओनली, ठीक है। दे आर नॉट सपोज टू लिव विद द रिच पीपल। सो ये क्लास डिफरेंस वाले पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, बाकी जो लोग हैं सबको जो सोशल इक्वालिटी मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है सबको, ठीक है जी। सो सोशल एक्सक्लूजन का पॉइंट यही आता है। अब ये मान के चला जाता है कि गरीब आदमी गरीब के पास ही रहेगा, मतलब रिक्शे वाले का दोस्त रिक्शे वाला ही होगा, आईएएस ऑफिसर का आप सोचो ही मत, ऐसे थोड़ी होता है। तो दिस वाज ऑल कॉन्सेप्ट दैट वाज स्टिल इनटू प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। बट हम लोगों ने इन चीजों से बाहर निकलना है, हमें रिच क्लास में भी जाना है, हमें और अच्छे स्टैंडर्ड्स देने अपने पेरेंट्स को, ठीक है। सो rich should live with the rich locality, ठीक है। रिच लोकेलिटी में रहना चाहिए, गरीबों को भी साथ में रहना चाहिए, कि वी शुड लिव इन द पॉश कॉलोनी, पॉश एरियाज, है ना, ऐसा होना चाहिए। So we should live in हाँ जी। सो नेक्स्ट, आज तो मेरा नेट बेटर है आई गेस। आई हैव चेंज द आईएसपी, मैंने आपको बोला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने चेंज कर लिया, तो टुडे आई हैव डन दैट। तो अब आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी सारी जगह, यूट्यूब वीडियोस में भी सारी जगह, ठीक है। चलो, आई एम हैप्पी विद दिस। सो रोज हम लोग कुछ कुछ हैप्पी रीजंस होते हैं हमारी लाइफ में भी, है ना। सो वी फाइंड इवन दिस स्मॉलेस्ट थिंग दैट मेक्स अस हैप्पी। सो मेरे लिए आज एक ये भी चीज थी दैट मेड मी हैप्पी, है ना। I'll be having better interaction with you all, ठीक है। तो ऐसे गुड रीजन ढूंढा करो अपनी लाइफ में खुश होने के लिए। दुखी होने के बहुत गंदे गंदे रीजन मिल जाते हैं अपने आप ही, खुश होने के लिए छोटे छोटे रीजन ढूंढा करो, छोटी छोटी खुशियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। जैसे आज दिग्विजय का बर्थडे है, दैट इज ऑल्सो वेरी हैप्पी थिंग फॉर अस, है ना। दिग्विजय स्माइल नहीं करता है, स्माइल करनी आती है दिग्विजय को। यू गॉट अ ब्यूटिफुल स्माइल, यू शुड स्माइल एवरी डे। आज तो ज्यादा करना चाहिए स्माइल, आज आपका बर्थडे स्पेशल डे है ना दिग्विजय। यस, ओके। चलो अब करते हैं वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन वाला मैंने फनी एग्जांपल देके आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी में ये कहते हैं कुछ जो कम्युनिटीज है, हम लोग मान के चलते हैं कि वो अपकमिंग ईयर्स ऑफ लाइफ में जितना मर्जी जोर लगा ले, वो यार हम लोगों से ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, वो गरीब ही रहेंगे। अब कौन सी कम्युनिटीज है, वो कहते हैं जो बैकवर्ड कास्ट वाले लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट ही बोल दिया तो ऑब्वियसली दे आर वेरी बैकवर्ड, ठीक है। फिर एक लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो एक तो डिप्रेशन में होगी, दूसरा उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, नो डाउट इफ शी इज नॉट वर्किंग देन, ठीक है। अनदर थिंग इज पीपल हु आर हैंडीकैप्ड, यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट हैंडीकैप्ड पीपल। सो वो अगर हम पूरी लाइफ में जितना काम करते हैं उतना वो करने की कोशिश भी करें तब भी हमसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। सो ये मान के चलते हैं हम लोग कि ये जो लोग हैं इनके पास ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होती है कि अपकमिंग ईयर्स ऑफ देयर लाइफ दे विल बी ऑलवेज पुअर, दे रिमेन पुअर, ठीक है, ये अमीर नहीं हो सकते। सो दिस इज व्हाट दे सेड। तभी तो हम लोग कहते हैं यार बेचारे का हाथ नहीं है, यार बेचारा गरीब है, बेचारा इसलिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं। सो हैंडीकैप्ड वाला रीजन हो गया। एंड किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली दैट ऑल्सो द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो देन शी इज पुअर लेडी, ठीक है, उसके बच्चे बड़े गरीब हैं। सो काइंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो ये दोनों चीजें जो थी, दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे हमें सोशल साइंटिस्ट ने व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, ठीक है, रिगार्डिंग पॉवर्टी। सो दे हैव जस्ट कंसिडर्ड दीज टू पॉइंट्स, टू कंसेप्ट्स, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है जी। सो आहान, योर वीडियो इज ऑफ, ऑन योर वीडियो। चोरी चोरी कुछ खाना नहीं है,
सबको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो जब स्कूल खुल जाएंगे फिर हम भी खाएंगे साथ में आपके, ठीक है? चोरी चोरी नहीं, कोई भी चलेगी। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। सो पॉवर्टी लाइन के लिए मैंने आपको बताया था देयर आर 2 पैरामीटर्स, ठीक है? वन इज, मैंने बोला आईसी। आईसी की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? ओके, रीवा वांट्स टू गिव मी इंफॉर्मेशन। यस, कहाँ गई रीवा? रीवा तो ये वामिका नो, रीवा will give me answer. Yes, रीवा. Income and consumption level. Yes, very good. ठीक है, right. I got the answer now, and I'm going to lower your hands. ठीक है? Yes. चलो चलो. So हमारे पास 2 consumption levels हैं, income and consumption level. Both are given here already. ठीक है? Income level के लिए हमने किया था, कितने हमें चाहिए होते हैं in the rural areas? How many? How much of money? Poverty line के लिए कितनी चाहिए होती है? And अब आप पॉवर्टी लाइन कितनी चाहिए होती है? रूरल एरियाज में कितनी चाहिए? अब आंसर कौन करेगा? चलो, वामिका विल गिव मी आंसर. वामिका, यस. Ma'am, in rural areas it is rupees 816 per month Yes, per yes, person, and in urban areas it is rupees 1000. right. ठीक है? Okay. So the next thing is for calories. So how many calories for consumption level? So Mr. Tejeshwar Manhas will give me answer. Manhas will give me answer. Ma'am, it is 2,100 in urban areas and 2,400 calories in rural areas. Okay. Tejeshwar, are you all right? मेरे को लग रहा है आज weak हो काफी आप. You're not feeling well, I guess. No, ma'am, it's nothing like that. Okay, but you are not looking like as light कम है. अच्छा, यहाँ पे बैठे हो आप. हाँ, मैं मेरे ब्रदर को बोल रहा हूँ कि वो लाइट ऑफ कर दे, वैसे लाइट काफी पड़ रही है, अपर लाइट की वजह से फेस थोड़ा डार्क हो रहा है, पर वो मेरी बात नहीं मान रहा, कहता मैंने होमवर्क करना है. Okay, okay, no problem. It's okay, no problem. ठीक है. Okay. So next thing is अच्छा, अब कौन बताएगा? कौन दोनों चीजें इकट्ठी कौन बताएगा मुझे? Calories as well as income. Only रीवा का हाथ raised है, बाकी डिजिटल हैंड. चलो, करणबीर बता रही है. करणबीर. Yes, Miss Karanbir. Ma'am, income 816 in rural and Rural, not ruler. rural and 1000 in urban, and for consumption level calories there is 2100 in urban and 2400 in rural. रूरल बोलना, बार बार प्रैक्टिस करनी है. गलत नहीं बोल लोगे, नाक कटवा लोगे मेरी. बोलना, मैम ने सिखाया ही नहीं अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाई. वी शुड लर्न. मैं भी लर्न करती हूँ, आज तक करती हूँ. ठीक है? ओके, फाइन. चलो नेक्स्ट करते हैं. सो पॉवर्टी लाइन वाला सबको पता हो गया. पॉवर्टी लाइन होता है एक मिनिमम लेवल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. वी हैव टू डू इट लाइक दैट. ठीक है? सो उससे अगर कम कोई कमा रहा है तो मैंने आपको बता दिया कैलोरीज का क्या अकाउंट बताया गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से हम लोग करते हैं. ठीक है बेटा जी? नेक्स्ट देखो. सो लेटेस्ट एस्टीमेट, पॉवर्टी एस्टीमेट्स में क्या बताता है? इंडिया में जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हो रही है. विद दैट टेबल वाज गिवन ऑन द पेज. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड. एज सच टेबल्स बहुत कम होता है, बहुत रेयरली कोई पूछता है. तो दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू द ट्रेंड्स. एस्टीमेट्स क्या है? कि इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट इज वल्नरेबल ग्रुप्स. वल्नरेबल ग्रुप्स में हमने 2 ग्रुप्स किए थे. एक किया था सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स किए थे, वल्नरेबल है. ठीक है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट मैंने बोला था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर देयर. एंड अनदर वन इज इकोनॉमिक ग्रुप्स जो आते हैं, वल्नरेबल इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स. सो देयर वर 2 ग्रुप्स. कौन से थे बताएगा? कौन बताएगा? वामिका. चलो वामिका जी बताइए. Ma'am, first of all, I had a doubt that in the poverty line, the second line, what is its meaning? Income or consumption level falls below given minimum level. तो minimum level, you told me na, 2100 calories and all that is the minimum level. Falls below means उससे कम.
उससे नीचे वाले ही कहेंगे ना हम लोग पुअर. Okay, poverty line measures those families which are Yes, below. yes. BPL category. And your question was that What are the which are, two economic vulnerable groups? these are rural agricultural labor households and urban casual labor households. Yes. ठीक है. So that is your answer. Very good. Next. Interstate disparities. You know, interstate disparities अब इसी का पंगा पड़ा हुआ है ऑर्डिनेंस वाला. मोदी जी ने गुजरात में HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके काफी डेवलपमेंट कर दिया था. ठीक है. उसके बाद अब मोदी जी पूरे इंडिया का डेवलपमेंट करने पे आ गए, तो वो ज्यादा ही डेवलपमेंट कर दिया, बेचारे किसान धरनों पे आ गए फिर. ठीक है. तो ये वाली चीजें अब यहाँ पे डिस्कस हो रही है. इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. सो पुअर स्टेट्स है मेनली, उन्होंने बोला था बिहार उड़ीसा जो है सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स है पूरे इंडिया में. सो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट. ठीक है. बिहार में ऑलमोस्ट 37 पॉइंट समथिंग के आसपास उन्होंने परसेंटेज बताई थी कि 37 पॉइंट सम परसेंटेज वाज देयर. ठीक है. सो दे आर पुअर इन दीज टर्म्स. उड़ीसा का भी ऐसे ही है, 37 के आसपास उनकी भी है. ठीक है. सो दोनों की पुअरेस्ट स्टेट्स मानते हैं हम पूरी कंट्री में. ठीक है जी. हाँ जी. सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे इट्स 37.6%. ठीक है. मम्मी का मुझे पता है बोलेगी. दूसरा वाला क्या था? ओके 36.2. सो ऑलमोस्ट 30. ओके 33.7 फॉर बिहार एंड 36.2 फॉर 32.6 उड़ीसा. ओके. ठीक है. So almost this is the percentage they have mentioned in your book. ठीक है. सो ये इतनी गरीब स्टेट्स है. सबसे ज्यादा पॉवर्टी यहाँ पे, बाकी किसी स्टेट में इतनी पॉवर्टी नहीं है. डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात. सो इन स्टेट्स में गुजरात का मैंने बोल दिया HRD की वजह से था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. टूरिज्म को बड़ा सपोर्ट किया था मोदी जी ने तब. गोधरा कांड भी हुआ था, ये तब भी इन्होंने किया था काफी. सो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं. ठीक है. सो ये इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज है. कौन सी स्टेट बहुत ज्यादा अमीर है, कौन सी स्टेट कम है, क्यों है, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है. ठीक है. अच्छा आगे है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो. सो अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखें तो हम लोग ट्रेंड जो है इट इज आपका $1.90 के बिलो काफी कंट्रीज आ गई हैं. गोधरा कांड था, कांड. ट्रेन्स बर्न करी थी, किसानों के बेचारों की जमीनें ले ली थी. तब मोदी जी ने तब भी ऐसे किया था जब ये नैनो वगैरह के प्लांट्स वगैरह लगने थे ना, वहां पे ऐसे इंडस्ट्रीज लगाई थी. सो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जबरदस्ती किसानों से जमीनें ले ली थी. तब भी मोदी जी CM ऑफ गुजरात थे, तब भी ऐसे हुआ था. तो किसानों के ऊपर हमेशा ऐसे ही करते हैं. इनको लगता है किसान तो अनपढ़ है. उस टाइम तो वहां पे कुछ नहीं बेचारे वो बोल पाए थे, बट अभी तो किसान पंजाब वालों के साथ पंगा लोगे तो पंजाब वाले तो वैसे नहीं छोड़ेंगे. ठीक है ना. ऐसे थोड़ी कहते हैं वी आर पंजाबी. वो कहते हैं बॉर्डर पे सिर्फ पंजाबी हैं तो इसलिए हम लोग सेफ है. अगर पंजाबी ना हो तो वी आर नेवर सेफ. चाइना यहाँ पे एंटर भी हो चुका होता कब से. वो टिंडे टिंडे से चाइना वाले वही आ जाते और हमें यहाँ पे आके कितना तंग करते. ठीक है. सो पंजाबीज वो अभी भी तो है वहां पे. देखो इतने ओल्ड एज्ड पीपल है, दे आर जस्ट टेलिंग कि हम लोग रेडी हैं मरने के लिए. आज तो मैंने ये भी न्यूज एक देखी है जिसमें लिखा है कि 1000 ऑफ दीज पीपल हु आर इन द एजुटेशन, उनके ऊपर FIR भी हो गया, तब भी पंजाबी नहीं पीछे जाएंगे. देखना कंबाइंस के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, क्या बोलते हैं, हर व्हीकल व्हाटएवर वी आर यूजिंग इन द फार्म्स, दे जस्ट टुक ऑल द व्हीकल्स एंड दिल्ली में जाके वहां पे खड़ा कर दिया. दिल्ली वालों को डर लग रहा है कि क्या करें हम लोग. अल्टीमेटली दे आर जस्ट ट्राइंग कि ये किसी तरह से लोगों को कवर कर ले. और क्यों किसान बोल रहे हैं कि रद्द करो, हमें नहीं चाहिए ये रिपील. दे आर जस्ट डिमांडिंग कि हमें रिपील चाहिए इस लॉ की. क्यों चाहिए? बिकॉज रीजन इज बीइंग, अभी ये ऐसे करेंगे लॉलीपॉप देके किसानों को बोलेंगे जाओ हमने आपने जो जो बोला आपका हमने मान लिया और ये लॉ में से हमने डिडक्ट कर दिया. थोड़ी देर के बाद ये खुद अमेंडमेंट करके फिर से किसानों के साथ पंगा ले लेंगे. दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग कि खत्म करो, हमें ये चाहिए ही नहीं. वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस.
दैट इज ट्रू पिक्चर वही है, गवर्नमेंट यही कर रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये मैंने आपको पूरा एक टेबल बना के दिया था, यहाँ पे बहुत कम उन्होंने कवर किए हैं चीजें। वी हैव डिस्कस्ड डिस्करेजिंग हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश लेवल, ठीक है, ये सारा हुआ था, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें चली थी। ओके बेटा जी, आगे देखो। नेक्स्ट थिंग, सो सब्सटेंशियल रिडक्शन, यहाँ पे था ये वाली चीज, सॉरी। सो ऑलमोस्ट अगर वर्ल्ड में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज मैं भूल गई हूँ, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में भी पॉवर्टी कम होती जा रही है, ठीक है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो पॉवर्टी खत्म हो रही है सारी जगह पे। सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये था यहाँ पे। जब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करते, लोगों की जॉब्स जा रही थी, बहुत कम जॉब्स थी, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लोग बढ़ते जा रहे थे, काम इनके एसेट्स देखा जाए तो काफी कम होता जा रहा था, ठीक है। आगे की चीजें क्या थी हमारी, ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है। एक मिनट रुको, ये वामिका जी कुछ बोल रही है फिर से। हाँ जी, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स खत्म कर दिए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में थे, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। यहाँ पे दो प्लैंक्स थे गवर्नमेंट ने जिसको यूज किया था व्हेन दे टॉक अबाउट पॉवर्टी खत्म करनी है। तो वन वाज यहाँ पे एंटी पॉवर्टी मेजर्स थे, अनदर था इकोनॉमिक ग्रोथ को कर दो, बढ़ा दो, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या था, सबको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट फूड देना स्टार्ट कर दिया, सबको उन्होंने पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काफी फैसिलिटीज देनी स्टार्ट कर दी थी। और अब अगर देखो एक गरीब इंसान है, उसको अगर मैं फूड फ्री दे दूं दैट इज गुड, उसके पैसे बच जाएंगे। अगर वो पैसा कमाएगा और वो फूड के ऊपर ही लगा लेगा, वो तो गरीब का गरीब रहा। यहाँ पे क्या उनकी इकोनॉमिक प्रमोशन होगी थी, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो द प्लैंक दे हैव यूज्ड फॉर improving people's standard of living, ठीक है। नेक्स्ट था PMRY, ऐसे प्रोग्राम्स थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, ठीक है, अनंतोदय अन्ना योजना, सो REGP, SGSR, क्या था SGSY। तो ये सारी जो हमने करी थी, ये सारी इसके फेवर में थी कि हमें प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ही करनी है। यस, फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स, यही बोला मैंने बेटा, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था, यहाँ पे एंटी पॉवर्टी मेजर्स है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। पॉपुलेशन कंट्रोल वाला पॉइंट कहाँ है, देखो जरा, चेक करो वामिका जी, चेक करो, मैं भी देखो जरा कहाँ है लिखा है, आई हैव नेवर सीन। ये आपका थर्ड लास्ट जो पेज है ना, उस पे दिया है इस चैप्टर के, चेक ऑन थर्ड लास्ट पेज। हाँ दिया है यहाँ पे, लेट मी, population control also they have mentioned, okay, so maybe, ठीक है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों पॉइंट्स ही हैं वैसे मेनली। तो आगे आपके जो एक्सप्लेन करे हैं ना नेक्स्ट, दे हैव मेंशन्ड बोथ द पॉइंट्स, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज चैलेंजेस अहेड, ये सारा कुछ तो गवर्नमेंट ने कर दिया, प्रोग्राम्स कर दिए, नरेगा भी था यहाँ पे, MG नरेगा, ठीक है, कि लोगों को 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। रूरल जो पुअर है उनके लिए गवर्नमेंट ऐसे हेल्प करेगी, ठीक है। सो वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आए थे, SGSY, ठीक है, ऐसी थी REGP रूरल, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, हाँ मेंशन है। पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, राइट है। मैं एक्चुअली में दूसरी साइड वाले जो पॉइंट्स थे ना वहां पे मेंशन था, वहां पे बात कर रही थी मैं, जो मेन पॉइंट्स बना दिए थे उन्होंने, ठीक है।
नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। अब चैलेंजेस स्टिल इंडिया के लिए कौन सी है? पॉवर्टी तो कम करनी है, उसके साथ साथ लोगों को एजुकेट करना है, कास्ट डिफरेंसेस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी है, जॉब सिक्योरिटी लोगों को अवेलेबल करवानी है, जो आपकी प्रॉपर हम लोग कहते हैं ह्यूमन पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, उसको अपग्रेड करना है। सो काफी ये चैलेंजेस हमारे इंडिया के आगे स्टिल है। ठीक है, सिर्फ एक पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी मतलब कितने जो चैलेंजेस और है इंडिया के लिए, कितनी और मुसीबतें उनकी जड़ है, ये हम लोग कहते हैं। रिमेम्बर मैंने आपको करवाया था इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। कौन से इश्यूज थे, कौन बताएगा मुझे? प्रगति बताएगी, प्रगति। यस, अनम्यूट करके बोलो। डू इट, अनम्यूट करो। यस, स्पीक आउट बेटा। हाँ जी प्रगति बोलो, यू कैन स्पीक है अभी, स्पीक आउट। यस बेटा बोलो। हाँ जी, नहीं बोल पा रहे। चरणप्रीत बोलेगी, चरणप्रीत, चरणप्रीत कौर जी बोलो। What will be your English name then? Moonpreet Kaur, Moon Love, है ना? चरणप्रीत अनम्यूट करो बेटा जी। कहाँ गई चरणप्रीत? आंसर दो, आंसर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेम ओनली। करो अनम्यूट। यू नॉट एबल टू अनम्यूट। कर तो रही हूँ मैं आपको, देखो करो। क्या है, चलो रीवा दे रही है आंसर, आप छोड़ो, नहीं कर पा रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करनी आई। चलो रीवा, गिव मी आंसर। Ma'am, it was Lucy THC, L for landlessness, U for unemployment, S for size of families, LUSI, I for illiteracy, and P for poor health, H for Poor health helpless and malnutrition. malnutrition, and H for helplessness, and C for child labor. राइट, वेरी गुड, याद है सब बच्चों को। अच्छा रियली अगर आपको चांस मिले मुझे कुछ सजेस्ट करने के लिए, है ना, चलो मैं आपको सबको अब मौका देती हूँ बोलने का, मुझे थोड़ी सी सजेशन दो आप लोग, सो दैट आई कैन इम्प्रूव मोर। अभी आपका चैप्टर तो हो गया, हमने कर लिया माइंड मैप सारे कंप्लीट। ठीक है, सो नाउ यू गॉट द चांस टू स्पीक। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट आई कैन ऐड मोर इन माय टीचिंग सो दैट यू विल बी फीलिंग मोर इंटरेस्टिंग इन इकोनॉमिक्स। बताओ मुझे सारे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप को बोल सकते हो अभी। मैम मोर क्या- क्वेश्चन। अच्छा मोर क्वेश्चंस पूछो, पूछती तो हूँ मैं आपको, काफी क्वेश्चंस पूछती हूँ साथ साथ में। तुम सारी पूछ करो। सबसे पूछूं? सारे क्वेश्चन पूछती तो हूँ बेटा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही पूछती है आपको। तो वंशिका की टर्न नहीं आई आज, है ना? मैम Think was और this? ऐसे नहीं, मतलब कि वैसे स्पेशल क्वेश्चन आंसर टेस्ट टाइप। ओके, टेस्ट वाली मैं बात अभी करने वाली थी, आप पहले पकड़ रहे हो, सही पकड़े हो, मैं फिर बात बोलती अभी कैसे सही पकड़े वो बता देती हूँ। ग्रेड 10 का आप लोगों ने आज स्टेटस देखा होगा मेरा, बड़े खराब बच्चे आप लोग। ग्रेड 10 के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, तो यू फाइंड दैट पॉइंट कि हमें भी ऐसे क्वेश्चन डालो, टेस्ट लो हमारा भी। यू वांट दिस? यू आल्सो वांट दिस?
नहीं जैसे मर्जी, मेरे कहने का मतलब ऐसे जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन आंसर से पूछे ना, ऐसे ही मतलब। कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही करेंगे। अभी मेरे पास और बड़ी चीजें हैं आपके साथ करने के लिए, हम रिवीजन ही करेंगे, हमारा सिलेबस खत्म है। वी हैव डन रिवीजन फॉर द 4th टाइम, ठीक है। सो वी विल डू मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं, मैं बहुत सी तरह से पूछूंगी आपसे चीजें, ठीक है। डोंट वरी, दिस इज वन वे, ठीक है। चलो फिर आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। किसी के माइंड में कोई और अच्छी सी माइंड ब्लोइंग सा आइडिया होगा तो गिव मी दैट आइडिया। आहान, you can give me idea, wonderful ideas. Ma'am, when will we having night camps? अभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैम मिल पहले जाएगी। ये तो मुझे लगा हम एंजॉयमेंट करेंगे नाइट कैंप्स में पूरी बॉनफायर के साथ स्कूल में जाके, बाद में पता चला उसमें पढ़ाई हो रही है। नहीं नहीं, वो तो पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं। वर्चुअल कैंप स्टार्टेड फॉर ग्रेड 12 आई गेस, सो लेट्स सी कब से स्टार्ट है। उनकी मैम टाइमिंग्स क्या होती हैं ग्रेड 12 के लिए, क्या है टाइमिंग्स? अभी कुछ नहीं है, जब एक प्लान होता है प्रॉपर, फिर वो देन वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। आपके एस्टिमेट से क्या टाइमिंग हो सकती है? आई विल चेक इट एंड टेल यू। ऐसे मैंने मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि ग्रेड 12 का था, मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट लेना ही नहीं था। What is your estimate that what last time can the school give to attend those night camps? एक्चुअली द नाइट कैंप्स पता कैसे होते हैं, मैं बताती हूँ, एक चीज बताती हूँ। नाइट कैंप्स में होता है कि आपके 3 days है, जैसे लाइक 3 days यू आर इन द स्कूल, पहले ऐसे होता था। तो टीचर्स आर विद यू एंड फुल आपका टाइम टेबल बना होता है, डे एंड नाइट यू आर डूइंग ऑल द स्टडीज एंड देन प्रॉपर खाना पीना सारा वो ऐसे चलता है। 3 दिन मतलब लगातार आपने पढ़ना है सारा इकट्ठे बैठ के टीचर्स के साथ। टीचर्स आर ऑन ड्यूटी, कभी एक टीचर आ रहा है, कभी एक जा रहा है, फिर ऐसे है। सो काइंड ऑफ दैट इज देयर, ठीक है। गर्ल्स के लिए फीमेल टीचर्स होती हैं, मेल्स भी होते हैं, फिर साथ में फीमेल टीचर्स भी होती हैं सारी, ऐसी ड्यूटी रहती है सबके साथ। सो लाइक अगर जैसे फीमेल्स है तो वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक, अगर हमें नहीं अलाउड है जहाँ, इफ आई एम नॉट लिविंग इन द लाइक स्टाफ क्वार्टर और आई एम नॉट लिविंग इन द हॉस्टल, ठीक है, तो तब मेरे लिए ये है कि मुझे या तो परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी फैमिली से रहने के लिए, नहीं तो मुझे मॉर्निंग का स्लॉट मिल जाएगा। आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस इन द मॉर्निंग, ठीक है डियर। हाँ जी, चलो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास बिकॉज ग्रेड 10 की क्लास है, उनकी मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी। Okay, bye bye, take care, God bless you all, and once again happy birthday to Digvijay. God bless you my dear. हाँ, मैं तो क्रिसमस और न्यू ईयर की भी अच्छी तरह से सेलिब्रेशन है, बस यही विश करी थी एग्जामिनेशन से पहले खत्म हो जाए, पर हो क्रिसमस जाएगी, पहले। होपफुली कोई बात नहीं, टेंशन मत लो यार, जो है जैसा है एक्सेप्ट इट, हैप्पी हैप्पी। लाइफ में बहुत सी चीजें आती है दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो क्या करोगे, हर बार अपना रास्ता खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे? नो, इट्स नॉट द राइट थिंग। You should accept all the things as you're getting, but be ready for everything, ठीक है। जहाँ पे तो हम लोग कर सकते हैं तो वी विल डू इट ऑब्वियसली, जहाँ पे नहीं कोई ऑप्शन तो फिर क्या करेंगे। अब दीवार है, दीवार को तोड़ के खुद तोड़ोगे कैसे और जाओगे कैसे फिर, ठीक है ना। ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ देयर इन अ प्रॉपर वे, ये चीज होती है। चलो ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल माय Bye, ma'am. बाय 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 मैम। बाय। Bye.